Assalamu alaikum, this is Shah Shazad Bajwa. Dear viewers, today we are here to discuss very important topic. एक ऐसा टॉपिक जिसको हर वो उस्ताद, वो टीचर या वो एक ऐसे अदारे का पर्सन जो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनना चाहता है, वो एक दफ़ा ज़रूर इसको पढ़े। सॉक्रेट्स का मैं अपने एक कोट आपसे शेयर करना चाहूँगा। सॉक्रेट्स सेज, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग। I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So it's very deep and interesting thing. We must consider this. So role model. What is और who is role model? जैसे ही हम किसी शख्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी लाइफ में एक रोल मॉडल आता है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी बातों को हम फॉलो करते हैं, जिसके लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करते हैं, द वे ही टॉक्स, द वे ही एक्ट एंड द वे ही कंप्लीट हिज वर्क एंड अचीव डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स। ये हम उसके अंदर खूबियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड रोल मॉडल इज समवन वी एडमायर एंड समवन वी एस्पायर टू बी लाइक। तो एक चीज को हम किसी से मुतासिर होते हैं और दूसरा हम किसी की तरह दिखना चाहते हैं। तो एक ऐसा शख्स हमारे फौरन जहन में आता है जिसकी एबिलिटी को देखते हुए हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारी पर्सनल ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। हम उनकी तरफ देखते हैं एडवाइस लेने के लिए, गाइडलाइंस लेने के लिए, ताकि हम उनकी तरफ बन सकें, उन जैसे दिख सकें, उनके लाइफस्टाइल को अपना सकें। तो ये बेसिकली एक रोल मॉडल होता है। देन व्हेन यू थिंक ऑफ टाइप ऑफ टीचर यू वुड लाइक टू बी, हु कम्स इन योर माइंड? हम जब किसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं या कहीं पे हम सोचते हैं या किसी टीचर को देखते हैं तो हम फौरन एक एक जेस्टर बनाते हैं कि हमें इस जैसा बनना है या बनना चाहिए था या हम बन सकते हैं। आज मैथ टीचर जिसने फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना सिखाया, इंग्लिश टीचर हु रोट ग्रेट कमेंट्स ऑन योर स्टोरीज, अ कंप्यूटर टीचर who given you the new ways to explore your technologies, new technologies, how you can explore new technologies, या फिर a teacher जिसने मदद की हो आपको न्यू स्पोर्ट और हॉबीज या टैलेंट आप में फाइंड आउट किया हो, आपको कहीं चांस दिया हो और आपको कहीं फ्रंट एंड पे लेके आया हो और वो आपका एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ जो आपके कैरियर को पाथ पे ला के खड़ा कर सकता था। सो हमारे पास बहुत सारी ऐसी शख्सियत मौजूद होती हैं, but a good teacher can make a world of difference in a student's life, impacting everything from their classroom learning to their long-term success. If you are considering a career in education, it is important to explore the qualities of good teacher. So it is not possible without exploring some good qualities or become finding some good qualities. You cannot become a good teacher. So around the world, different researchers have given their own opinion to become a role model for others. I have chosen some of them for you. One by one, we will go through it. First one is good teacher are strong communicator. That is very important point. I would say without communication skills, you cannot be a good teacher. From first day of the class of the year, you share your different methodologies that can be their favorite hobbies, sports, future careers. You discuss everything with your students to become familiar with them. And this inexperienced teacher
often fail to realize this important term. Strong communicators can achieve lot of things with their communication skills. So, viewers, I would say teachers communicate to perform six necessary functions. A good communicator set the direction of learnings, that is called goal setting, provide relevance for learning motivation, guide the learning activity, methodologies, different methodologies you can apply, indicate when the learning is successfully accomplished, assessment and evaluation. That is very important. A strong communicator teacher definitely uh, look after this thing. Manage classroom environment, engage in social activity, can be any kind of activity, a presentation or group discussion or so many other activities we will discuss in next points. Next we have good teacher listen well. Great communication doesn't stop when teacher is done talking. Listening well is one of the most important skills needed to be a teacher. हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक खला ऐसे कह लें या मेरे नज़दीक तो एक ऐसा पॉइंट है कि हम बोलना तो जानते हैं स्टूडेंट्स से, लेकिन स्टूडेंट्स को सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इरिटेटिंग क्वेश्चंस करते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे हो, अगर आप उनसे बात करना शुरू करें, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, चाहे आउटसाइड द क्लास हो, रिसेस टाइम हो, ब्रेक टाइम, या एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें लंच रूम्स बने हो, वहाँ पे जाके बच्चों से आप उनकी बातें सुनें। Then, listening helps building positive leaderships and studies clearly identify the close teacher and student relationship. ये एक बड़ा important point है कि जब आप बात करते हैं स्टूडेंट्स की, सुनते हैं, तो आप उनके और आपके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कायम होता है। इससे ये होता है कि स्टूडेंट जब भी कोई परेशानी में आता है तो वो सबसे पहले सोचेगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं। और अगर आप ऐसे टीचर बने जिसको स्टूडेंट को ये लगे कि अगर मैंने ये बात सर से कर दी या मिस से कर दी तो मेरी बहुत सारी चीज़ों पे अफेक्ट आएगा, तो वो हो सकता है आपसे वो चीज़ शेयर ना करें। तो हमारे यहाँ सोशल, एकेडमिक और इमोशनल, ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सक्सेसफुली हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो टीचर एक अच्छा लिसनर होता है, जो सुनना पसंद करता है या बच्चों को सुनने के लिए मौका देता है, तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। देन थर्ड पॉइंट, गुड टीचर्स फोकस ऑन collaboration. The beauty of collaboration is not only the ability to tap into various respective ideas but also share responsibility for our students learning. अगर इसको मैं कुछ ये कहना चाहूँ कि जब हम टीचर्स बैठ के आपस में बात करते हैं, अपने स्टूडेंट्स से बात करते हैं, अपने को टीचर से बात करते हैं, अपनी हायर मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट वो बैकग्राउंड जो उनसे अलग होते हैं उनको भी शेयर किया जाता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं टीचर्स को, आइडियाज शेयर करने के, रिसोर्सेज शेयर करने के, इंफॉर्मेशन शेयर करने के, अपनी एक्सपर्टीज, लर्निंग मेथडोलॉजीज और इफेक्टिव एक्सेसिबल जो रिसोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। Now, what kind of benefits we can get from this collaboration? Increase academic efforts, increase understanding of students' data, and more creative lesson plans.
हमारे यहाँ एकेडमिक एफर्ट्स जो भी एक टीचर होता है वो अपने हिसाब से एक क्यूरिकुलम को डिज़ाइन करके पढ़ा रहा होता है, दूसरे टीचर की अपनी मेथडोलॉजीज होती है, थर्ड टीचर्स की अपनी होती है, और जब बैठ के आप आपस में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे की कैच करते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। और सबसे बेहतरीन जो टीचर के पास डेटा होता है वो स्टूडेंट का डेटा होता है, इसलिए कि अगर वो बेहतरीन कम्युनिकेटर हो सकता है तो फिर वो स्टूडेंट्स के पास जितनी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन के टीचर के पास होंगे किसी और के पास नहीं होंगे, और आपका लेसन प्लान बहुत अच्छा डिज़ाइन हो सकता है। देन वी हैव गोल्स। Good teachers are adaptable. Adaptability is something teachers require on a regular basis. Likely plays an important role in helping them to navigate the demands of their works. For example, at work, teachers regularly what operations or different methodologies can apply. तो हम एक जब इस चीज़ पे आते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स का और टीचर के लर्निंग रिस्पांस जो है वो हम इजीली जज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो क्लास में हो जाती हैं वो उनको टाइम टेबलिंग जो होती है वो आगे पीछे हो जाता है, टीचर्स कभी ऑफ पे चले जाते हैं, आप उनके जगह पे पढ़ाने जाते हैं, या डिफरेंट कोलीग्स से स्टूडेंट्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपसे शेयरिंग हो रही होती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको स्टूडेंट्स के जैसे ही उनके पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। जब पेरेंट्स आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे आप नहीं अननोन पर्सन है तो आप क्या बात करेंगे, नहीं, यू हैव लॉट ऑफ डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद देयर पेरेंट्स एंड टेल देम व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड विच एरिया needed to recover their more strong communication और academic backgrounds। तो इंटरेक्शन प्रोफेशनल लर्निंग में भी ज़रूरत पड़ती है और आपके एक अच्छे टीचर बनने में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट इज गुड टीचर्स आर एंगेजिंग। जो टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं बना सकता वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्लास में, आउटसाइड द क्लास या कहीं पे भी ज़्यादा देर इंगेज नहीं रख पाता, और उसका रीज़न ये निकलता है कि उस रिज़ल्ट में बच्चे या स्टूडेंट्स चाहे किसी भी लेवल के हों वो अपनी हरकतों से, अपनी इरिटेटिंग पॉइंट से या डिस्टर्बिंग बिहेवियर से क्लास को डिस्टर्ब करते होते हैं। और ये चीज़ नहीं होती, आपने जैसे क्लास में बच्चों को इंगेज करना है, देन आफ्टर द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन योर गिवन असाइनमेंट्स और योर वर्क। और इसके लिए क्या हो सकता है, क्लास में, विद इन क्लास और आउटसाइड द क्लास, डिफरेंट methodologies you can apply, think, pair, share. This is a very good exercise you can give to your students, can think on any point, then can make different pairs and share with each other. Debates, discussions, concept mapping, polls and clicker style questions, and class presentation, these are the basic engaging methodologies or activities we mostly apply on students for better results. More methodologies you can apply depends on your skills and your expertise. Number 6 point is good teacher have patience. Most important quality, अगर टीचर में बर्दाश्त नहीं है तो बहुत जल्द स्टूडेंट्स इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो आपकी साइकी को समझते हुए ऐसे इरिटेटिंग क्वेश्चंस, ऐसे इरिटेटिंग पॉइंट्स जनरेट करते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, क्लास का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। सो
आपको कभी भी गिव अप नहीं करना स्टूडेंट्स के सामने, और कोशिश करनी है कि आप उनको नए आइडियाज के थ्रू उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएं। और सबसे ज़्यादा साइंस मैथमेटिक्स के टीचर्स जो होते हैं वो ये प्रॉब्लम फेल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपसे बार बार एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उनको समझने में परेशानी होती है, और फिर वो आपको डिफरेंट वेज में इरिटेट करते हैं और आपकी पेशेंस का वो लेवल चेक करते हैं। सो गुड टीचर्स आर वैल्यूएबल एसेट्स to any school, college, university, whether it is a preschool or a respected university. They inspire their students to learn long after they complete their formal education. So, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब स्टूडेंट्स पास आउट होके चले जाते हैं तो वो फिर आपको कैसे याद रखते हैं, किन अल्फाज में याद रखते हैं, या आपके पास उनके लिए क्या वैल्यू है। गुड टीचर्स शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक बेहतरीन टीचर वो होता है कि अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी क्वालिटीज अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स से शेयर करे, ताकि इन फ्यूचर व्हेन स्टूडेंट्स आर गोइंग इन मार्केट एंड स्टार्टिंग देयर प्रैक्टिकल लाइव्स, सो दे कैन show themselves as a build up person, not a childish activities or in a stage where they are still learning, but जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो उनके अंदर एक ऐसे ही समाती है जैसे वो खुद को बिल्डअप कर रहे हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर देयर बेस्ट कैरियर, और योर फाइंडिंग्स वो उनसे शेयर करें, अपनी फील्ड की प्रैक्टिसेस उनसे शेयर करें, और अपनी फील्ड के साथ साथ दूसरों की फील्ड को भी उनसे शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि आवर टीचर हैव बेस्ट क्वालिटी और ही इज डेफिनेटली अ experienced person. Number 8 point, good teachers are lifelong learners. टीचर कभी भी सीखने के अमल से दूर नहीं हो सकता। दिस इज एज until you are alive you have to learn and share different technologies, different ideas, how to manage your class, how you can expand your knowledge, how you can deliver your knowledge in better way, how you can give more better ideas to your students, and how they can judge as a best teacher in your organization. No matter your education can be a university, a college, or a school, depends on what in what level you are teaching, but you can't stop learning. Being willing to continually add tools to your toolbox, एक आपकी methodology होती है टीचिंग में, उसमें आप different tools ऐड करते जाते हैं कि किस तरीके से मैंने स्टूडेंट्स को engage रखना है, किस तरीके से मैंने उनको पढ़ाना है, क्या असाइनमेंट्स देनी है, किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप करनी है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, किस तरीके से उनसे सुनना है, और कौन कौन से उनमें स्किल्स जनरेट करने हैं, ताकि वो जब जाएं मार्केट में प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करें तो उनमें ऑलरेडी वो स्किल्स बिल्डअप हो चुके हों। सो वी आर फाइनली गेटिंग स्टार्टेड विद इफेक्टिव टीचिंग. If you are interested in starting a career in education, it's important to first focus on your own learning. Whether you are seeking an undergraduate teaching degree, a master's in education, or even an education doctorate degree, building strong foundation of knowledge and real world experiences is key to becoming a good teacher. Teachers make such a huge impact on their students' lives. I believe
that being a teacher is a very special gift, and those that have that gift make a positive, lasting impression on the lives of their students that can totally change their route of their lives. So, these are the references. I have collected data on different sources. Thank you so much. Follow me on Facebook. My Facebook page is SSB, and subscribe my YouTube channel Shahid Shahzad Bajwa. If you have